All of you just look at here. I am starting a new thing that is called MySQL. So there is here work on your data. Actually, it helps us to work with data. So we have a lots of tool and technology. We have multiple alternative tools. Multiple alternative tools basically we have that help us to work on our data. Okay. So there is a thing here कि why we use MySQL, why we use MySQL in today era in broad level. मतलब देखो बेसिकली एक सिंपल सा फीचर, सिंपल सा मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे MySQL को एक सिंपल वर्ड में यदि हम कहें कि why we use MySQL, we can clearly say that कि MySQL actually work with our data. That help us to work with data. Like which one? Excel, आपने जो पढ़ा भी होगा. Excel also help us to work with data. Python also help us to work with data. And there is another one, BI tool, business intelligence tool like Power BI, Tableau, आपने सुना होगा. These also work with data. So why we are using MySQL? We have already these tool and technology that is more powerful than MySQL. These have more capability than MySQL. Then why we use MySQL? If anyone. Actually, we can clearly say if anyone asks me why, yes, so we can clearly say that actually it provides us data security in triple. मतलब we can clearly say it provides us data security in multiple level. मतलब जैसे hierarchy में follow करता है. Let's say we have a three hierarchy. So if you are avoiding this security, then we have another particular security. If you are avoiding again this one, then we have another security. मतलब actually it provides us triple layer security. फर्स्ट वन भी आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आया. स्कीमा लेवल, फिर आपको यूजर लेवल, फिर डेटाबेस लेवल, मतलब सर्वर लेवल. बेसिकली वी हैव अ थ्री लेवल लेयर सिक्योरिटी इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स. बिकॉज ऑफ दिस वी आर यूजिंग माइसिक्वल. पासवर्ड का एक लेवल पे है. पासवर्ड जिसको आगे पूरी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, वो डेटा सिक्योरिटी नहीं कर सकते. वो जिस हमारे फोन की जो पैटर्न लॉक है जस्ट टाइप, तो पैटर्न यदि किसी को पता है तो वो सारी चीजें कर सकता है. बट स्टिल यदि सीक्वल में किसी को पैटर्न पता भी है, पासवर्ड लेट से मैंने आपका जान लिया, तब भी हम आपके से बहुत कुछ नहीं कर सकते. कंस्टेंट लगे हुए हैं, ट्रिगर्स हैं उसमें. आप बहुत सारे टास्क ऑटोमेटिकली नहीं करेंगे. और यस यस, और यदि आप करेंगे भी तो भी आप जस्ट कुछ टाइम बाद कैच आउट हो जाएगा. यस और so this is the special thing about MySQL. So then we can clearly say that कि why we use MySQL. So we can clearly say that कि actually it provides us more data security compared to another one. Because of this we are using MySQL. Okay. So there is a thing here कि actually it work on your data and it provides security on your data. So which type of data? क्योंकि we have multiple types of data. Yes or no? So thing is that what is the data? First thing is that what is the data? Anyone asked you what is the data? Then have anyone any idea what is the data? वन मोर थिंग्स, ये जो मैं आपके सामने नोट डाउन कर रहा हूँ ये आप राइट ना करें, बस चीजों को एनालाइज करें. मैं इसकी आपको चीट शीट पीपीटी के फॉर्म में शेयर कर दूंगा, तो उसको आप गो थ्रू बोलेंगे, इससे अच्छे राइटिंग मिलेगा. बस मैं अभी आपको पीपीटी फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें होती है डिस्कस करना, वो आप उसको देख लेंगे. सिर्फ अभी चीजों को एनालाइज करें. तो व्हाट इज द डेटा? एनीवन आस्क्ड मी व्हाट इज द डेटा, देन व्हाट विल बी योर आंसर? यस, आप लोग न्यू स्टूडेंट, कैन यू गेस व्हाट इज द डेटा? Exactly. Collection of information. We can clearly say that, missing a simple word, collection of or data. Collection of information. That is called data. Yes. So there are mainly two type of information, meaningful and meaningless. There are how many types of data? Meaningful and meaningless. So we have a meaningful, if anyone asks you what is the data, then we can clearly say collection of meaningful information, that is called data. Okay. And one more special thing about data is that, which one? See, anyone ask you what is the data, then we need to say that meaningful connection of meaningful information. Actually, this is the important word, meaningful information. And the second thing, that can be measured, which can be measured, जिसे हम measure कर सके. तो what is the meaning of measure? जैसे रियल लाइफ में what is the meaning of measure? Measure means जिसको measure कर सके आप, means जिसको आप control कर सके. That is the measure, yes or no? If you are saying that I can measure this one, means what? You are controlling that. तो सेम मीनिंग फॉर दिस वन. मेजर मींस व्हाट? विच टाइप ऑफ डेटा या हाउ मच डेटा दैट कैन बी ऑर्गेनाइज, जिसे आप हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज? यू कैन स्टोर इन प्रॉपर वे. Second one, you can summarize your data according to your need.
and third one, you can analyze this data according to your working flow, according to your COD. Yes, yes. आ जाओ. If you do these three things on your data, then we can say that this is your data. Okay. Actually, देखो, जैसे suppose करो, if we have a large amount of data, that is the big data, then we cannot say that one is our data. Actually, yes. So if you can do three things with data, you can clearly say that this is the raw data, या this is the data according to our need. समझ रहे हैं सभी लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं? सबसे पहले मैंने आपको साथ डिस्कस किया कि why we use MySQL. फिर मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि हमने देखा कि MySQL हेल्प अस टू वर्क विद डेटा सिक्योरिटी. फिर हमने देखा कि फिर विच टाइप ऑफ डेटा वी कैन प्रोवाइड द सिक्योरिटी. क्योंकि डेटा मल्टीपल टाइप के होते हैं, तो मैंने ये आपको थोड़ा सा आइडिया दिया. तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ डेटा. यदि हम टाइप्स ऑफ डेटा की बात करें तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ डेटा. स्ट्रक्चर्ड डेटा, फर्स्ट वन इज द structured data according to their need. There are how many types of data? Three types of data: structured, semi-structured, and unstructured data. There are how many types of data? Three types of data. According to their nature, according to their working flow, we have three types of data: structured, semi-structured, and unstructured. Done. So which type of data is called structured data? If a data that have any type of a structure like row and column format, that is called structured data. If our data, any example of the structured data? एक्सेल के जो आपके शीट हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा. आप पाइथन में पढ़े होंगे लिस्ट. दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा. इसके अंदर इंडेक्स फॉलो करता है 0 1 2 3. अब और भी आपने देखा होगा टपल इज आल्सो स्ट्रक्चर्ड डेटा. So all data that have any type of structure, that is called structured data. समझ में आ रहा है? Another one is the semi-structured data. Semi-structured data किसे कहेंगे? That type of data in which of all data, some data have any type of structure. Let's say ID. हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सभी कस्टमर से एम्प्लॉय की डेटा स्टोर कर रहे हैं. बट अनदर उनकी जो रिमेनिंग इंफॉर्मेशन है, जो डिटेल्स है, उसमें आपने नेम पहले लिखा, फिर एड्रेस, फिर ऐसे. अगली बार आपने एड्रेस पहले लिख रहे हो, फिर नेम लिख रहे हो, फिर प्रोफाइल. दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड. मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे लेट्स से बहुत अच्छा एग्जांपल है जेसन डेटा, या आपके डिक्शनरी जो होता है उसमें की प्रॉपर है 1011, पर उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होगी वो व्हाटएवर हो सकती है. ये सब एक सेट भी हो सकती है, एक लिस्ट भी हो सकती है, टपल भी हो सकती है, ये खुद भी एक डिक्शनरी हो सकती है. पावर भी आ सकता है. पावर भी कैसे बना दे, एंड जो ये सब जो अपन डैशबोर्ड बना दे तो उसके अंदर कुछ भी आता है. पावर बीआई में जो डेटा जाता है ना बेटा, स्ट्रक्चर्ड ही जाता है. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम ही नहीं कर सकता. सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा पे भी. तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम तो करता है, बट उससे कन्वर्ट किसमें करता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा में. नाउ द लास्ट वन इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा नाम से पता चल रहा है, इन बीच ऑफ नो एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के क्या एग्जांपल दे सकते हो? एनी एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. जैसे आपने कोई वेबसाइट देखा, इफ एनी वेबसाइट, लाइक आपने देखा होगा वट एवर वेबसाइट ओपन कर लो, जैसे अमेजॉन की, तो आपने देखा होगा यहाँ पे इमेजेस हैं, उसके नीचे टेक्स्ट हैं, ऑडियो वीडियो चल रहे, वट एवर थिंग्स. तो कोई स्ट्रक्चर नहीं कि यहाँ पे इमेज ही मिलेगा, यहाँ पे आपको प्राइंट मतलब वट एवर थिंग्स हैपन. ये सो तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. क्या हम यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं? सभी लोग क्लियर हो रहा है? तो देयर आर हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा? थ्री टाइप्स ऑफ डेटा: स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड. देन MySQL वर्क विथ विच टाइप ऑफ डेटा? हमारा MySQL किस तरह के डेटा पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा. So think that इसमें वर्क करेंगे, हम पर वर्क करेंगे. मैंने आपको बताया ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. एक्चुअली पहला, आपको डेटा को लेवल पे, मतलब डेटा अननेसेसरी आप एक्सेस नहीं कर सकते, और आप अनवांटेड डेटा या अपने नीड के अकॉर्डिंग व्हाटएवर डेटा को अपने ऐसा नहीं हो सकता कि व्हाटएवर यू वांट टू डिलीट दिस वन. जैसे एक्सेल में जिस रो को चाहो आप डिलीट कर लो, इसमें व्हाटएवर नहीं कर सकते. वी हैव सम रूल एंड सेट ऑफ रूल, वी नीड टू फॉलो दैट वन. नाउ अगेन सेकंड है आपको यूजर लेवल पे. लेट्स से हम इतने सारे यूजर्स हैं, तो सबके स्पेशलाइजेशन है कि आप इतने टास्क कर सकते हो, आप इतने टास्क कर सकते हो, उसके बियॉन्ड आप टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते. यूजर लेवल पे. थर्ड वन डेटाबेस सर्वर लेवल पे. लेट्स से कुछ सर्वर को पूरी कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी अगेन ऑथराइजेशन है. तो वी हैव अ ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी. आगे जाके आप पढ़ेंगे सिक्वल इंजेक्शन. तो सिक्वल इंजेक्शन से हम डेटा सिक्योर भी करते हैं, सिक्वल इंजेक्शन से हम किसी अनदर सर्वर के डेटा को अपने अकॉर्डिंग यूज भी करते हैं. जैसे आपने सुना किसी के सर्वर हैक करना, तो सिक्वल इंजेक्ट करना मतलब उसकी डेटाबेस पे अनऑथराइज्ड तरीके से एक्सेस कर लेना.
और अगेन उस पर्टिकुलर जो डेटा जो जो उस पर्टिकुलर एक्सेस को हटाने के लिए अगेन वी नीड टू इंजेक्ट SQL इंजेक्शन। मतलब ये दोनों चीजें करता है, आपको सिक्योरिटी भी देता है और आप किसी को मतलब अनसिक्योर भी कर सकते हो। तो आप अपनी नीड पे अपनी डेटा को बचाने के लिए सिंपल इंजेक्शन लगाते हो, अनदर लोग आपके डेटा पे जब डेटा पे कोई सिंपल इंजेक्शन लगा रहा है मींस व्हाट, अब वो आपके मलिशियस इंटेंशन से यूज करेगा आपके डेटा को, ये सुनो। तो थ्री थिंग्स। तो अब थिंग इज दैट कि किस तरह के डेटा पे प्रोवाइड करता है, क्योंकि डेटा मल्टीपल टाइप के होते हैं। आज की जो एरा है इसमें डेटा का एक सिंगल फॉर्मेट नहीं, ये तो तीन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो बनाए गए थे स्टार्टिंग में। अब ये तीन फॉर्मेट ही नहीं फॉलो करते, मल्टीपल फॉर्मेट है। आप जाके जाके पढ़ोगे हाइब्रिड डेटा स्ट्रक्चर, मल्टीपल टाइप के स्ट्रक्चर आ गए हैं। ये तो तीन स्टैंडर्ड है जो अभी तक लोग अकॉर्डिंग टू डीबीएमएस फॉलो करते हैं, बट अभी सिर्फ तीन तरह के स्ट्रक्चर नहीं फॉलो होते। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा। तो अभी फिलहाल के लिए हम तीन ही तरह के हैं, तो हम अभी डिस्कस करते हैं। तब देखो इस डेटा को, चाहे वट एवर डेटा हो, चाहे वो आइदर स्ट्रक्चर डेटा हो, सेमी स्ट्रक्चर हो या अनस्ट्रक्चर डेटा हो, इसको इस पर्टिकुलर डेटा को यदि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज करना है, जिसको वी नीड टू स्टोर दिस डेटा, हम इस डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। ये सोच, जैसे रियल लाइफ में हमें अपने वाटर को अपने अकॉर्डिंग यूज करना है तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर करते हो टंकी में या वट एवर, फिर आपसे बाथरूम किचन जहां जहां पे यूज कर लो। सो सेम थिंग हैपन फॉर रियल। सो वी नीड टू स्टोर दिस डेटा, इस डेटा को अपने नीड के अकॉर्डिंग स्टोर करना होगा। सो दैट इज कॉल्ड डेटाबेस वेयर वी कैन स्टोर दिस टाइप ऑफ डेटा, दैट इज कॉल्ड डेटा। So what is the database? Anyone asked you what is the database? Database is nothing but it is a virtual environment in which we can store lots of data. Yes, but this is not a physical environment. Our hard disk is not a database. क्योंकि हार्ड डिस्क में तो हम डेटा स्टोर करते हैं ना, ये सब। तो अगर हार्ड डिस्क इज नॉट अ डेटाबेस, database is the virtual environment where we can store the lots of data. And one more thing about database is what कि in our hard disk follow the hard disk management system। मतलब जो हमारे कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर जो मैनेजमेंट फॉलो होगा हमारे कंप्यूटर का फॉलो होगा। बट ये जो डेटाबेसेस हैं आपके कंप्यूटर पर डिपेंडेंट नहीं है, लाइक ये इनके खुद के मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये जो डेटाबेस है इसके अंदर आप अनदर तरीके कोई मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैकेनिज्म कोई अनदर चाहिए नहीं, ये खुद के अपने मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। मींस व्हाट, इस डेटा के बेस के अंदर कैसी डेटा और कहाँ पे स्टोर होगी ये खुद डिसाइड करेगा। आप इसके लिए अलग से कोई मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब या आपके कंप्यूटर का मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो दिस इज द थिंग्स अबाउट डेटाबेस। तो एनीवन आस्क मी व्हाट इज द डेटाबेस, then you can clearly say that it is a important, this is the important word, it is a virtual environment not a physical environment in which we can store data according to own mechanism। वो अपने खुद के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग स्टोर करता है। फिर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए? दैट इज कॉल्ड डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दैट इज कॉल्ड दैट मैनेजमेंट सिस्टम या दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस आपने सुना होगा। तो आप मींस व्हाट कि यदि एनीवन आस्क यू व्हाट इज द डीबीएमएस, यू कैन क्लियरली से इफ यू वांट टू हैंडल या वी नीड टू हैंडल दिस डेटाबेस in proper way then we need to use DBMS। डेटा डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट नाम से पता चल रहा है, इट इज अ मैनेजमेंट सिस्टम दैट हैंडल योर डेटाबेस। सिंपल वर्ड, यस और नो, इट इज अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम या इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म या इट इज अ टाइप ऑफ टेक्निक दैट हैंडल योर डेटाबेसेस। एंड इन डेटाबेसेस व्हाट टाइप ऑफ व्हाट एवर टाइप ऑफ डेटा, एक डेटाबेस के अंदर किसी भी तरह की डेटा हो सकती है। स्ट्रक्चर डेटा भी पॉसिबल है, अनस्ट्रक्चर डेटा भी पॉसिबल है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा भी पॉसिबल है, क्योंकि वो तो डेटाबेस है ना, उसके अंदर व्हाट एवर डेटा स्टोर हो सकती है ना, ये सब। तो दिस इज द थिंग्स अबाउट डेटाबेस। क्या हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं? तो देखो अभी तक हमें दो चीज हमने डिस्कस किया। हमें सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट है? डेटाबेस की। उस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? डीबीएमएस। आप देखो मल्टीपल डेटाबेसेस आपने सुना होगा। देखो ये डेटाबेस के अंदर जिस तरह के डेटा स्टोर होती है उसके बिहाफ पे हम डेटाबेस को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। रिलेशनल डेटाबेस आपने सुना होगा और सेकंड वन इज द नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस किसे कहेंगे बेटा? अ डेटाबेस इन विच ऑल डेटा आर स्ट्रक्चर। एक ऐसी डेटाबेस जिसके अंदर सभी की सभी डेटा कैसे हैं? स्ट्रक्चर्ड। अ डेटाबेस इन विच ऑल डेटा आर स्ट्रक्चर्ड, दिस टाइप। सभी की सभी डेटा जो है क्या है? स्ट्रक्चर्ड है, ट्रू एंड कॉलम के फॉर्मेट में, एंड ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। अब a virtual environment in which have all data are structured and interconnected to each other, that is called relational database। या you can also say that a relational database in which have all data are structured। इसके अंदर वही डेटा स्टोर हो सकते हैं जिस सिर्फ स्ट्रक्चर हो, और सभी डेटा आपस में क्या होंगे? इंटरलिंक। एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से जैसे आप देखे होंगे, जैसे लेट्स से किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट की यदि डेटाबेस को हम विजिट करें तो उसमें सबसे पहले होता होगा कस्टमर टेबल, जहाँ पे कस्टमर की, जब आप साइन अप करते हो तो आपकी सारी डेटा कस्टमर टेबल में ऐड होती होगी, जहाँ पे आपकी कस्टमर आईडी,
कस्टमर का नेम, कस्टमर का फोन नंबर, कस्टमर का ईमेल आईडी। अब जब आप ऑर्डर करते हैं व्हाटएवर, तो एक उनके पास अनदर टेबल होगा जहाँ पे ऑर्डर आईडी जनरेट होता होगा जब भी आप ऑर्डर करते होंगे, और इस ऑर्डर किसने किया उसकी कस्टमर आईडी भी होती है, ग्रीन कलर। विदाउट कस्टमर क्या कोई ऑर्डर कर सकता है? आप अमेजोन में विदाउट उसके कस्टमर बने क्या आप कुछ ऑर्डर कर सकते हो? मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे वही कनेक्टेड, यहाँ पे वही कस्टमर की आईडी ऐड हो सकती है जो पहले यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हो। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, किस भी यहाँ पे कस्टमर आईडी। इस तरह के इंटर रिलेशन आपको फाइंड आउट होगा। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप यदि मिले तो दैट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। ऐसे डेटाबेस को हम क्या कहेंगे? रिलेशनल डेटाबेस। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो एनी एग्जांपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस? तो माइस्क्ल इज द एग्जांपल ऑफ रिलेशनल डेटाबेस जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करते हैं। तो या तो आप लिमिटेशन भी कह सकते हैं, यदि एनीवन आस्क यू कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ माइस्क्ल, देन वी कैन क्लियरली से इन विच वी कैन स्टोर विच टाइप ऑफ डेटा ओनली, किस तरह के डेटा स्टोर कर सकते हैं? सिर्फ रिलेशन। रिलेशन मींस व्हाट? स्ट्रक्चर्ड। यस और सिर्फ आप कैसे डेटा स्टोर कर सकते हैं? ओनली स्ट्रक्चर्ड। एंड सेकंड वन द नॉन, इस और भी है मल्टीपल, जैसे आपने सुना होगा ओरेकल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, माइस्क्ल, i3, IBM DB2, ये सब क्या है? आपके रिलेशनल डेटाबेसेस जिसके अंदर आप स्ट्रक्चर डेटा स्टोर करते हैं। बट पूरे इंटायर वर्ल्ड में सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा ही तो नहीं होते ना, अनस्ट्रक्चर डेटा भी होते हैं। तो उसको स्टोर करने के लिए हमने क्या डेवलप कर रखा है? नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नॉन रिलेशनल डेटाबेस की एग्जांपल आप दे सकते हो, मोंगोडीबी हमारा नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, अपाचे, कैस्केंड्रा, ये सब क्या है? हमारे नॉन रिलेशनल डेटाबेस। नहीं, वो टूल है, हैंडल करता है। हडूप के अंदर डेटा स्टोर नहीं। इमेजॉन डीबी, डायनेमो डीबी आपने सुना होगा, ये सब क्या है? हमारे नॉन। इसके अंदर कैसे डेटा स्टोर होगी? अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड। समझ में आ रहा है आप सभी को यहाँ तक? नॉन रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड भी होती है, स्ट्रक्चर होते हैं। और रिलेशनल डेटाबेस के अंदर सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा होगा, सेमी स्ट्रक्चर डेटा स्टोर नहीं कर सकते। समझ पा रहे हैं आप मेरी चीजों को? तो अब इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी स्टोर होगा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा भी स्टोर होगा। अब देखिए अगेन, अब ये जो डीबीएमएस है, अब जैसी डेटाबेस है उसी को अकॉर्डिंग उसको यूज करेंगे ना। तो यदि हमारे पास एक रिलेशनल डेटाबेस है तो रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करने के लिए वो डेवलप हुआ मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज कॉल्ड आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस को हैंडल करने के लिए वी डेवलप अनदर वन दैट इज कॉल्ड नॉन आरडीबीएमएस। नॉन आरडीबीएमएस, इसको कुछ लोग नोएसक्यूएल भी बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। दिस इज कॉल्ड नोएसक्यूएल। So anyone ask you what is the RDBMS? It stands for Relational Database Management System, and it helps us to handle your relational database. And what is the non-relational database management system? It handle our non-relational database. Okay. तो रिलेशनल डेटाबेस एग्जांपल की यदि बात करूं तो SQL आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। देखिए Oracle आपका डेटाबेस भी है और खुद एक मैकेनिज्म भी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है। PostgreSQL भी यही सेम से है। और नॉन आरडीबीएमएस की यदि बात करें, नॉन आरडीबीएमएस तो मोंगोडीबी डेटा को स्टोर भी करता है, उसको हैंडल करने की एबिलिटी भी देता है। तो दोनों है। डायनेमो डीबी भी सेम है, अमेजोन डीबी भी सेम है। तो अब एक कंफ्यूज, अब इतनी चीजें में समझ में आया तो बताएं आप। अब एक कंफ्यूजन हो रहा होगा कि माई सीक्वल और सीक्वल में दो अलग अलग चीजें कैसे है। मैं कह रहा हूँ कि माई सीक्वल हमारा क्या है? रिलेशनल डेटाबेस है, और SQL को मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, अभी तक यही पॉइंट तक मैं पहुंचा हूं ना। हमने सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ डेटा समझाया। फिर टाइप्स ऑफ डेटा के बाद डेटा को स्टोर करने के लिए डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट है, उस डीबीएमएस को हैंडल करने के लिए, सॉरी उस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए डीबीएमएस की रिक्वायरमेंट होगी। ये दो तरह के होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये देखो, अब ध्यान से समझना आप सभी लोग। देखो जिस लेट से डेटाबेस है, तो ये आपके माइस्क्ल को मैंने कहा था कि दिस इज अवर रिलेशनल डेटाबेस, आरडीबी। नहीं, इट लुक लाइक समथिंग दिस, ऐसा कह सकते हैं समथिंग लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा दिख रहा होगा जिसके अंदर आपकी डेटा स्ट्रक्चर स्टोर होती जा रही होगी, ये सब। तो देयर इज अ स्पेशल थिंग अबाउट, यदि इसको आप प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करेंगे या ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सेसिबिलिटी में भी प्रॉब्लम होगा। सो वी यूज अनदर वन दैट इज कॉल्ड आरडीबीएमएस। तो इस माइस्क्ल को हैंडल करने के लिए वी आर यूजिंग विच वन? एसक्यूएल। तो SQL हमारा क्या है? एक आरडीबीएमएस है जिस जो माइस्क्ल को हैंडल करता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं माई सीक्वल और सेक्वल में, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, बट इनडायरेक्टली अलग अलग ही है। उसके अंदर सिर्फ डेटाबेस स्टोर होगा और उस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए किसी रिक्वायरमेंट होगी SQL। समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो SQL स्टैंड फॉर क्यूरी लैंग्वेज, नाम से पता चल रहा है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज मींस व्हाट? इट हेल्प अस टू परफॉर्म क्यूरी। एक्चुअली देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ
लैंग्वेजेज इन टुडे एरा अकॉर्डिंग टू टेक्निकली। यदि हम टेक्निकली बात करें तो दो तरह के होते हैं, एक होता है आप पढ़े होंगे और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक होता है असेंबली लैंग्वेज, है ना। तो ये हमारे जो SQL है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का पार्ट है, और आपका पाइथन हो गया, जावा, C++, ये सब क्या है, असेंबली लैंग्वेज। मींस व्हाट, SQL इज आल्सो टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बट इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। समझ में आ रहा है आपको? डन, समझ में आया सभी को? तो दिस इज द थिंग्स अबाउट इन माई सिक्वल। नाउ अब एक चीज यदि हम आपसे कहें कि व्हाट इज द माई सिक्वल, तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द माई सिक्वल? MySQL is a relational database in which we can store only structured data, and all data are interconnected to each other. And for handling this particular data, we need to SQL, a structured query language. That is a RDBMS. समझ में आया सभी को? देखो इंटरव्यू में ना ये तीन ही चीज जनरली सबसे पूछे जाते हैं आपसे कि व्हाट इज द डेटाबेस, टाइप्स ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस हम समझ गए, डेटाबेस क्या है? एक तरह का कंटेनर है, वर्चुअल कंटेनर, जिसमें आप लॉट्स ऑफ डेटा स्टोर करते हैं। फिर हमने इस डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हमने पढ़ा आपके साथ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये दो थे अकॉर्डिंग टू डेटाबेस। फिर इस डेटाबेस, ये दो ही चीजें हम अभी तक हमने डिस्कस किया है। ये सुन, अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू अवर डेटा, हम यहाँ पे चूज करेंगे कि हमें क्या यूज करना है, क्योंकि डेटाबेस भी दो थे, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल, ये भी दो थे। तो इसमें से आपको चूज करना है डेटा के अकॉर्डिंग। क्या हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं सब लोग? So this is the part of introduction. Now we need to move on installation part. अब हम में से किसी को कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। देखो आप में मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फर्स्ट राउंड इंटरव्यू का क्वेश्चन है आपका। तो मैं थ्योरेटिकली इतना बोलना है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पहले राउंड में पूछा जाता है। यदि आप इसे लाइटली ले रहे हो तो आपकी दिक्कत हो सकती है। कम से कम फर्स्ट राउंड में तो हम सेलेक्ट रिजेक्ट किया हूँ। टेक्निकल राउंड में पॉसिबल है कि आपसे क्वेश्चन टिपिकल पूछ ले, बट फर्स्ट राउंड में ऐसे क्वेश्चन पे तो फंसे ना कम से कम लोग। बहुत लोगों को कंफ्यूजन है DBMS और RDBMS में, पूछ लेना आप कुछ लोग जो सीक्वल पढ़ रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो हम कंफ्यूज ना हो, हमें DBMS पता है क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है ये भी पता है। समझ में आ रहा है? डेटाबेस कितने तरह के होते हैं बेटा? दो तरह के। कौन कौन से? रिलेशनल डेटाबेस और एक क्या पढ़ा आपने, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में आप कैसे डेटा स्टोर करते हैं? ओनली स्ट्रक्चर्ड। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस में हमने अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए हमने डेवलप किया DBMS, जिसे RDBMS कहते हैं। एक हमारा नो SQL भी कह सकते हैं, नॉन RDBMS को। तो RDBMS हमारा रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज मैनेज करता है, और नॉन RDBMS हमारे नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इतनी बातें हमें कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। सो तो ये बात म्यूट कर ले, क्वेश्चन ना हो। जरा प्लीज म्यूट कर लो, कोई क्वेश्चन ना हो तो। Now we need to move on another part that is called installation. तो इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली राइट करना है यहाँ पे MySQL डाउनलोड, और यहाँ पे एंटर हिट करें। देखिए ये सबसे फर्स्ट वेबसाइट है बेटा, आपको दिख रहा होगा। इस पे जाना है, देखिए सबसे नीचे जाना है MySQL डाउनलोड सेक्शन पे। स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे देखिए आ जाएंगे आप, माई कम्युनिटी GPL डाउनलोड दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे अगेन। यहाँ पे आ जाएंगे माई इंस्टॉलर फॉर विंडोज दिख रहा है, इसे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे 2.1 MB का डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड, ठीक है। इसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। देखिए सेटअप फाइल डाउनलोड हो गया, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैंने इसे बहुत ज्यादा यहाँ पे, और जस्ट डबल क्लिक ऑन इट आफ्टर इंस्टॉलिंग, वी नीड टू जस्ट डबल क्लिक। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे देखो इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गया मेरे सिस्टम में है। यस करते जाए जहां भी आपको रिक्वायर्ड हो। देखो ये एक्चुअली अब यहाँ पे देखो, हाँ दूसरा डबल क्लिक करके रन कर दें। डबल क्लिक करें, रन करने लगेगा। नाउ देखो वी हैव थ्री थिंग्स देख रहे हैं, माई सिक्वल सर्वर, एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इन माई सिक्वल सर्वर जस्ट क्लिक ऑन प्लस, अगेन क्लिक ऑन प्लस, अगेन क्लिक ऑन प्लस, वी नीड टू सेलेक्ट दिस वन। जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करोगे यहाँ पे ग्रीन कलर हाईलाइटेड होगा, क्लिक करोगे इधर आ जाएगा। फिर आपको अगेन करना, मूव करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन है, प्लस माई सिक्वल वर्कबेंच, अगेन इसको हमने क्लिक किया, इसको आपको सेलेक्ट करना है, ये भी इधर आ जाएगा। ठीक है, हमने दो चीज सेलेक्ट कर लिया। क्या क्या सिलेक्ट कर दिया बताएं आप? एक तो हमने सिक्वल सर्वर किया था, दूसरा हमने क्या किया, वर्कबेंच। फिर आप तीसरा माई सिक्वल सेल में चले जाएं, इसको सेलेक्ट कर लें, टॉप वन वाले को, टॉप वन, और इस पर क्लिक करें। तो ये तीनों चीजें आ गई। क्या 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 हमने ऐड किया बताओ आप एक बार। सबसे पहले हमने फिर हमने एप्लीकेशन को वर्कबेंच चूज किया, और फिर हमने क्या किया, सेल्स। तीन चीजें आप कर लें, ठीक है। मेरी भी इंस्टॉल्ड है ना, सो आई हाईलाइटेड का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देख रहे हो ना आप। आपने फर्स्ट इंस्टॉल करेंगे तो ऑप्शन दिखेगा।
तो आपको कर लेना है। नाउ आफ्टर इंस्टॉलिंग दिस वी नीड टू सर्च फॉर माई सिक्वल। आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है वर्कबेंच। जस्ट क्लिक यहाँ पे, जस्ट आप यहाँ पे वर्कबेंच, देखिए ओपन हो गया। ये सब लोग यहाँ पे नोटिस करें, देखो ऐसे आप में भी ओपन होगा। आप जब इंस्टॉल करेंगे ना तो एक टाइम के बाद यूजर का नेम यहाँ पे आएगा, यूजर नेम आपको रूट पे आना है, और पासवर्ड वटेवर रख सकते हैं, बट यूजर नेम हमेशा रूट रख। इसके बीच में डिफरेंस क्या है, आपने से कोई ऐसा डाउट कर रहा होगा, रूट की स्पेशलिटी ये होगा कि आपको एडमिन लेवल का प्रिविलेज मिल जाएगा, जिससे आप एडमिनिस्ट्रेशन से वर्किंग कर सकते हैं। यदि आप नॉर्मल अपने नेम से यूजर कनेक्ट करोगे तो आपको वो प्रिविलेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या, लॉगिन किससे होना है, रूट से। आप इंस्टॉल करने जाएंगे ना तो नेक्स्ट 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 क्लिक करते यूजर नेम और पासवर्ड आएगा। यूजर नेम में रूट रखना, पासवर्ड वट एवर रख सकते हैं। समझ रहे हैं सभी लोग। और पासवर्ड ऐसा रखना जो आपको याद हो, पासवर्ड ऐसा ना रखें जो आपको जैसे यूपीआई जैसा हो भूल जाओ। सिंपल रखें, यहाँ पे पैसे चोरी नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंस्टॉलेशन करने के बाद पासवर्ड भूल जाते हैं, तो जितनी बार इंस्टॉल ओपन करेंगे उतनी बार पासवर्ड भूल पाएंगे लोग। तो यदि आपको पासवर्ड याद नहीं हुआ तो आप इंस्टॉल ओपन नहीं कर पाओगे। और यदि आप भूल गए तो इसके लिए इंस्टॉल करना बड़ा टिपिकल होगा। समझ में आया हम सभी को। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान से देखिए माई सीक्वल को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देखिएगा ये वर्ड्स, क्योंकि यहीं से मैं वर्किंग फ्लो टॉपिक पे आ रहा हूँ। माई सीक्वल को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखिए होगे ना, अपने गाइड्स वगैरह होते हैं, जो मोटे बुक्स होते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड कर लेते हो, जिससे आपको कन्वीनियंट होता है पढ़ने में। तो सेम हमारी माई सीक्वल को भी मल्टीपल टाइम में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डीक्यूएल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इससे नाम से पता चल रहा है क्यूरी लैंग्वेज मतलब अब एक्चुअली क्या करता है ये जो आपकी डेटाबेस है, कैसी डेटाबेस होगी बताइए, रिलेशनल ना। रिलेशनल डेटाबेस के अंदर से बेटा क्यूरी परफॉर्म करने में हेल्प करता है। जैसे हम लेट से कि ई कॉमर्स वेबसाइट होता, तो मैं आपसे कहूँ कि हाउ मेनी, लेट से हमें इसमें से ये चेक करना है कि हाउ मेनी पर्सन दैट एज इज ग्रेटर देन 60, और कितने हैं जिनकी लेस देन 60 है। तो इस तरह से आप यहाँ से डायरेक्टली क्यूरी परफॉर्म कर सकते हो। समझ में आ रहा है। ये आप यहाँ पे अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्यूरी जनरेट कर सकते हो, व्हाट एवर यू कैन। आया। तो दिस इज द थिंग्स अबाउट डीक्यूएल, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इसमें आप अपने डेटाबेस के अंदर से जैसी डेटा चाहिए वैसी डेटा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। सेकंड वन इज द डीएमएल, सेकंड सी दिस इज द फर्स्ट वन डीक्यूएल, सेकंड वन इज द डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल इज व्हाट, डेटा मैनिपुलेशन। नाम से पता चल रहा है मैनिपुलेशन मतलब, जैसे लेट से ये कस्टमर की टेबल थी जिसमें 50 कस्टमर की डेटा पहले से थी। अब जैसे एक नया कस्टमर आया तो उसमें ऐड करेंगे ना आप, तो ये मैनिपुलेशन मतलब जैसे कोई नया कस्टमर का ऐड करना, किसी कस्टमर की डेटा डिलीट करना, या किसी कस्टमर का फोन नंबर चेंज करना, ये सब किसमें होगा, डीएमएल। मतलब मॉडिफिकेशन जितने भी होते हैं वो कहाँ होगा, डीएमएल के अंदर। तो डीएमएल में आपको तीन चीजें मिलता है फीचर। इंसर्ट, आप न्यू फीचर को न्यू यूजर्स या न्यू डेटा आप ऐड कर सकते हो, एग्जिस्टिंग डेटा को आप अपडेट कर सकते हो, एज वेल एज उसके डेटा को आप डिलीट कर सकते हो। ये तीन चीजें आपको अवेलेबल है, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। समझ में आ रहा है। हम करेंगे तो देखिए नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड वन इज द डीसीएल, डीक्यूएल होता है डेटा क्यूरी लैंग्वेज। इससे हम क्यूरी परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूरी परफॉर्म करेंगे। फिर हमारा डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नाम से पता चल रहा है डेटा डेफिनेशन। तो डेटा डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, खुद का नया डेटाबेस बनाना, उसके अंदर खुद से अपने नीड अकॉर्डिंग टेबल बनाना, दैट इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन। आपने सुना होगा क्रिएट, क्रिएट, इससे नई डेटाबेस खुद से बना सकते हो, बनवा सकते हो। अल्टर एंड ड्रॉप, देयर आर मेनी थ्री कमांड्स इन डीडीएल। अच्छा ट्रंकेट भी होता है, कौन कौन से, आप नई क्रिएट का नाम सुन जाता है, क्रिएट मतलब खुद का नया डेटाबेस बना लो, उसके अंदर नई टेबल बना सकते हो। अल्टर मतलब कॉलम का नेम रीनेम, अभी तक जो हमने डीएमएल कर रहे थे सिर्फ रो पे काम कर रहे थे, टेबल के अंदर दो ही चीजों होगा, या तो रो या तो कॉलम। तो डीएमएल में सिर्फ रो पे काम करेंगे, यदि कॉलम में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन करने का यूज करेंगे आप डीडीएल को, है ना। और लास्ट वन इज द डीसीएल, डीसीएल डेटा नाम से चल रहा है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज मतलब व्हाट, आप अपने अकॉर्डिंग अपने डेटाबेस को सिक्योरिटी दे सकते हो। जैसे हम इतने सारे यूजर्स हैं हमारे डेटाबेस पे, तो हम फिक्स कर सकते हैं कि ये यूजर में इतनी प्रिविलेज, इसको इतना, इसको इतना। जिससे क्या होगा कि डेटा बहुत ज्यादा लॉस होने का चांस नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा होता है। इतनी बात समझ में आई आपको। और लास्ट वन इधर ट्रांजिशन कंट्रोल, डीसीएल में क्या क्या होता है देखिए।
आप किसी नए यूजर को परमिशन अलाउड करते हो, ग्रांट करते हो, और दूसरा दूसरा होता है रिवोक। जैसे किसी को ये आपने दिया, वो रिवोक हो गया, दिस इज कॉल्ड रिवोक। रिवोक मतलब परमिशन वापस ले। तो दो तरह के होते हैं, डिसीएल, ग्रांट एंड रिवोक। समझ में आया आप सभी को? क्लियर हुआ नहीं, वो बताइए। और लास्ट वन इज द टीसीएल, ट्रांजिशन कंट्रोल लाइन। ट्रांजिशन कंट्रोल लाइन में क्या होता है, जैसे आपने किसी को पेमेंट करा या वट एवर जो भी ट्रांजेक्शन किया, अब वो जो टास्क था मेरे से बाई मिस्टेक हो गया, तो उसको अंडो करना है। तो इसके लिए अगेन टीसीएल हेल्प करता है। इसके लिए हम ग्रांट, ग्रांट सॉरी ग्रांट नहीं, रिवोक, रिवोक, रिवोक के बाद सॉरी तीसरे होता, तीसरा हमारा यूज होता है रॉय बैक, रॉबरी बैक, सेव पॉइंट, रॉय बैक, सेव पॉइंट, और ये होता है हमारा कमिट। ये तीन कमांड यूज होता है। समझ में आया हम सभी को? तो कितने पार्ट हमने अभी तक डिस्कस किए? यदि मैं आपसे कहूँ कितने पार्ट डिस्कस किए, तो 5 पार्ट में डिस्कस किए। कौन कौन से बताएं? डीडीएल, डीडीएल, डीडीएल और डीसीएल। समझ में आया सभी को? डीसीएल और टीसीएल। अल्टर कमांड था, कॉलम रीनेम कर सकते हैं, कॉलम डिलीट कर सकते हो, नया कॉलम ऐड कर सकते हो। जैसे रो ऐड करने के लिए तो डीएमएल था, नया रो ऐड करो, रो डिलीट करो। बट एक नया कॉलम ऐड करना हो, कॉलम नेम रीनेम करना, मतलब टेबल पे मॉडिफिकेशन कैसे होगा, डीडीएल। खुद का नया टेबल बनाना हो तो सब चीजें कैसे होंगी, डीडीएल। तो हम इसी फ्लो में चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको डीक्यूएल पढ़ाऊंगा, फिर डीएमएल, फिर डीडीएल, फिर डीसीएल। तो अच्छी बताओ, सबसे पहले डीक्यूएल पढ़ने के लिए हमें क्यों नहीं परफॉर्म करना है? हमारे पास ऑलरेडी डेटाबेस बनी बनाई होनी चाहिए, तब तो हम परफॉर्म कर पाएंगे। यस और नो? यदि हमारे पास डेटाबेस ही नहीं हुआ तो हम क्या परफॉर्म करेंगे? समझ पा रहे हो आप पॉइंट मेरा? तो दिस इज द थिंग्स, तो दिस इज द रिक्वायर्ड। तो हमारे पास एक डेटाबेस की फाइल पड़ी है। अच्छा, सीक्वल में जो डेटाबेस होते हैं ना, डेटाबेस के बैकअप जो लोगे, तो एमबी जीबी में नहीं होता, वो केबी में होता है, क्योंकि हम स्क्रिप्ट का स्टोर करते हैं, हम डेटा को नहीं स्टोर कर पाते। जैसे डेट से हमारे के अंदर 500 डेटा है, 500 किसी टेबल के अंदर, तो 500 के अंदर जितने भी रूम होंगे उसे मैन्युअली लाना। समझ में आप? तो ये स्पेशल है। तो हम सबसे पहले डीक्यूएल पढ़ेंगे, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, फिर हम डीएमएल पढ़ेंगे, और फिर इस तरह। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं डीक्यूएल, है ना? ड्रॉ। अभी देखो, वॉर इन होने की नीड है, मैं आपको रटने के लिए पढ़ेंगे कि करके सब डिक्यूएल भी शुरू कर रहा हूँ ना, तो सब आता जाएगा। जितना लिख लिए ठीक है, नहीं लिखे कोई इशू नहीं है। इसकी मैं चीट शीट भेजूंगा आपको, उसमें सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से रिटेन है ना? तो अब यहाँ पे देखिए सब लोग, जब ये जैसे डिक्यूएल, नेक्स्ट क्लिक करें, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तीन चीजें सिलेक्ट कर लें। बताता हूँ करने का, रुक जाए 5 मिनट, मैं एक बार टॉपिक थोड़ी सी डिस्कस करूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना एरिया हाईलाइटेड है बेटा, दिख रहा है आप सभी को? डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करके जस्ट इंटर द पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है, 1 2 3 4 5 मैंने इंटरनेट के देखो, पासवर्ड ओपन हो गया। और पासवर्ड हर बार रिक्वायर्ड होगा आपसे, है ना? तो यहाँ पे दो पैनल है, आप देख सकते हो। यहाँ पे नोटिस करें आप, यहाँ पे दो पैनल है आपके सामने, स्कीमा पैनल एंड एडमिन पैनल, एडमिन पैनल एंड दिख रहा है। एडमिन मतलब आपको ऑलरेडी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिन मतलब क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिन में कितनी चीजें बताओ, सर्वर स्टेटस, यहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि हमारे सर्वर सर्वर की इंफॉर्मेशन क्या है, रनिंग इंफॉर्मेशन है या नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ से आप क्लाइंट कनेक्शन, क्लाइंट कनेक्शन मतलब कितने लोग हमारे सर्वर से कनेक्टेड हैं। देखो, हर जगह लोकल होस्ट आ रहा है, लिखा हुआ ना, आ रहा है। यदि मैं किसी क्लाउड इन्वायरमेंट से कनेक्ट होता हूँ तो यहाँ पे उसकी वाईफाई एड्रेस लिखा होता है। तो यहाँ सभी को, तो यहाँ पे ये बताता है कि कितने यूजर आपसे कनेक्ट है। देखो, ये सारे यूजर वो हैं ये जो हमारे डेटाबेस से ऑलरेडी कनेक्टेड है। देखो, आप यहाँ से एक नया यूजर, यहाँ से किसी यूजर को आप डिलीट भी कर सकते हो, और यहाँ से किसी भी यूजर को आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, बना नहीं सकते। यदि जो यहाँ पे नोटिस करें, योर स्टेटस एंड सिस्टम वेरिएबल्स, डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट समझ में आता है। स्टार्टअप शट डाउन क्या होता है बताओ? स्टार्टअप एंड शट डाउन डेटाबेस। देखिए आप यहाँ पे भी हमारी सर्वर क्या है, रनिंग में, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टॉप को रख, यहाँ पे नोटिस करें आप, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। तो इस तरह से आप इस पे वर्क करते हो। तो ये हमारा क्या है,
एडमिन पैनल पे क्या करते हैं, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं। नहीं, क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? हमें लग रहा है हम अकेला एफर्ट लगा रहे हैं, आपकी तरफ से जीरो आ रहा है, मैं नहीं पढ़ा रहा ऐसे। अरे तो बोलना चाहिए ना ऐसे कि धीरे बोलो, क्लास खत्म होने के बाद बोलोगे क्या? अच्छी चिड़िया चुप गई कि क्या होता है? अरे वो तो हम, आप जैसे क्या होता है ना कि आप यदि बोलोगे नहीं तो हमें क्या लगता है कि आप जो मैं बोल रहा हूँ 100% ग्रैब कर लो। यदि आप बोलोगे तो मैं चुप चुप बोलते बोलते मेरे गले में दर्द हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि आप नहीं समझ गए हैं। क्लासें चलेगी 2 वीक और। हाँ हाँ, तो बोलोगे तब ना, चुप हो बैठे हो। सर 2 वीक मतलब आप 12 सॉरी 14 दिन कह रहे हो नहीं, 14 क्लास मतलब 3 वीक लग जाएगी, 3 से 4 वीक। एक महीना मान लो मोटा मोटी। 1 महीना रख लो मोटा मोटा, इतनी जल्दी सीक्वल नहीं खत्म होती। और आप लोग बोलो ना तो मैं तो सुनेंगे उधर वो हंस रहा है केवल, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, हंस क्यों रहा है भाई, दिक्कत है क्या? अरे बोलो तब तो समझेंगे कि परेशानी लेवल क्या है। एक हफ्ते पहले मैंने शुरू किया है। नहीं, ये हर बैच के साथ ये स्टोरी होती है। यहाँ पे जितने भी ड्यूबल में नए बैचेस बनते हैं, इक्वल पाइथन एक्सेल का अकेला मैं नहीं, नए बच्चे जितने होते हैं एक बिजनेस क्लब होते हैं, और एक आज से जो बैच शुरू होगी वो अगेन किसी के लिए रीइनिशिएट नहीं होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, समझ गए? तो आपके ये जितने भी आज देखो, आप सभी लोग नए बच्चे बहुत सारे ऐड हुए हैं, आप देखिए हो खुद ही आपने रिमूव। तो मेरा कहने का मतलब है कि 1 वीक तक होता है ये चीज। अब अगर ऐसा नहीं है, आपको माइंड सेट करेंगे फिर मंडे को भी रीइनिशिएट हो जाएगा। मेरे लिए बहुत बड़ा सा कर दिया होता है, इंट्रोडक्शन क्लास बहुत बड़ा वो होता है टिपिकल, क्योंकि इसमें इतना बोलना होता है, इतना बोलना होता है। अच्छा वही बोल सर, एक बोले आप बोला करो ना, मुझे शुरू हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ कोई बोले कि सर। सर मतलब दिन कह रहे हो वो मतलब आज से तो यार ये क्या डेट लिख लेता हूँ, 3 और 14 17 तारीख को, 18 को खत्म करेंगे। यार ऐसा थोड़ी होता है, तेरी भी थोड़ी चल रही है किसी की, आज शुरू हुआ है तो तेरी भी को खत्म हो जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये शादी वादी थोड़ी चल रही है किसी की। पढ़ रहे हो ना बेटा, तो जैसे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में टाइम जाता है थोड़ा इधर उधर। क्लास का प्लान कर रहे हैं सर, क्या बोलते हैं ना ना, अभी क्लास चलेगी। देखो मेरे वाले बैच में ना खास करके ऐसे मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता, थोड़ा लंबा चल सकता है ना, तो थोड़ा ऐसे मत सोचो, थोड़ा लंबे टाइम के लिए आप सोच के पढ़ो। पढ़ा है, मोंगो डीबी से तो पढ़ा है। मोंगो डीबी तो स्कीमा, मोंगो डीबी पढ़ लियो आप लोग, उल्टा पढ़ ली, यही गड़बड़ तभी ऐसा लगता। पहले माई सिक्वल पढ़ना चाहिए तब मोंगो डीबी। वैसे ही करता है। कोई नहीं, अब पढ़ लेना है मोंगो डीबी। एक बार आप इसे पढ़ लो फिर मोंगो डीबी को देखना, तब आपको लगेगा क्या है डिफरेंट। अब यहाँ पे वापस आए, देखें, बातें ना करो, बिल्कुल चुप, बस भाई बातें ना करें। तो देखो यहाँ तक मैंने 2 चीजें बताया आपको, एडमिन पैनल ना स्कीमा पैनल। ये मेरे में इतने सारे डेटाबेस। अब देखो, बात नहीं करे, मुंह ढक के, समझ गए? वापस से आ बताओ। अगर थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत ज्यादा हो जाता है, ये हम अभी से आज फर्स्ट क्लास है, ये स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे ना। तो देख लो, अभी चाय मंगा रहा है ये, बस। अब देखिए, अब नेक्स्ट वन इज द स्कीमा पैनल। अब देखो यहाँ पे ना 2 पैनल हमेशा मिलेंगे, एडमिन और स्कीमा। एडमिन पे आप एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं, और स्कीमा इज व्हाट इज द स्कीमा। आप देखो यहाँ पे इतने सारे स्कीमा ऑलरेडी बने हुए हैं, तो व्हाट इज द स्कीमा? होता है, मतलब डिजाइनिंग जो बनते हैं घर के, दैट इज कॉल्ड स्कीमा। तो यहाँ पे इतने सारे जो दिख रहे हैं ना, आप ये क्या है, आपके डेटाबेस है। ये दीज आर द डेटाबेस। ये कैसे डेटाबेस है? रिलेशनल डेटाबेस है। अब ये सिंबल देखो बेटा, ये सिंबल से ही हमें पता चलता है, ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये सिंबल जो है, ये ऐसे सिंबल जो दिख रहे हैं, ये डेटाबेस के सिंबल होते हैं, रिलेशनल डेटाबेस के सिंबल होते हैं। अब देखो हमारे पास कितने सारे डेटाबेसेस बने हुए हैं। आप 5 डेटाबेस आपके सिस्टम में नहीं बना होगा। आपको, आप जब फर्स्ट टाइम आओगे तो एक बना हुआ दिखेगा, SYS। तो मैं एक फाइल सेंड कर देता हूँ, उस पर क्या करना है आपको, ये इस यहाँ तक पहुंचने के बाद एडिट के जस्ट नीचे ये वाले आइकन दिख रहे हैं आप सभी को, ये वाला आइकन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कर, एक सेकंड रुको, इस पे क्लिक करें आप, इस डेटाबेस को सिलेक्ट कर लो। मैं भेजूंगा अभी जस्ट आपको, स्क्रिप्ट फाइल है। इसको जैसे ही ओपन करेंगे, देखो ये आपके स्क्रिप्टिंग ओपन हो गई यहाँ पे, ये सीक्वल की स्क्रिप्टिंग ऑलरेडी रिटेन है। तो ये जैसे ही इसे रन कराओगे ना, यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही रन कराओगे, यहाँ पे क्लिक करके रन कराना है, जैसे ही आप इसे रन कराएंगे तो आपके सिस्टम में ये बन जाएंगे। देखिए ऐसे रन करेगा बेटा, और ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे हमारा तो खत्म हो गया,
वो रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। जब पहली बार करेंगे तो आपके सामने वैसे नहीं दिखेगा, यहाँ पे आइकन दिख रहा है, इस पे 2-3 बार से क्लिक कर देना रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देखो बन गया ना, यहाँ पे दिख रहा है बेटा, बन गया ये सारी। तो ये सारे आप में भी क्रिएट हो जाएंगे दोबारा से। समझ में आया आप सभी को? तो ये स्क्रिप्टिंग फाइल मैं आपको शेयर कर, ये स्क्रिप्टिंग फाइल को बार बार रन नहीं कराना। एक चीज और, ये डिस्प्ले किसी किसी की ऐसी भी दिख सकती है, देखो ऐसे दिख सकती है। तो ये 3 जो है ना, ये नेविगेशनल बार, इससे आप अपने डिस्प्ले को फिट कर सकते हैं जैसा चाहिए आप। क्या ना, दिख रहा है आप सभी को? जैसा चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग इसको ठीक कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा है एडिटर विंडो है, यहाँ से हमारे कमांड पैनल कर सकते हो इसे, यहाँ से हमारे एरर शो करते हैं। आउटपुट विंडो भी से कर सकते हो आप, जहाँ पे हमारे कमांड के एक्शन शो करते हैं कि जो हमने कमांड चला उसका एक्शन क्या है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? तो ये जो हमने अभी, ये सारे क्या है सिक्वल के कमांड, तो हम खुद पढ़ेंगे हम लोग जब आगे पढ़ेंगे। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, देखो क्रिएट, अभी मैं जिसकी बात कर रहा था डीडीएल के अंदर, क्रिएट अल्टरनेट ड्रॉप, ये हमारे ऑलरेडी मैंने बनाया है, इसको आपको रन कर लेना है। तो ये हमारे पास डेटाबेस बन गए। अब आपको इसकी क्यूरी राइट करनी है, लेट से देखिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना सभी लोग। तो ये हमने अपने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया। इसको यहाँ से आप मैनेज, यहाँ से ऐसे कर सकते हैं डाउन, और यहाँ से देखिए फाइल के जस्ट नीचे जो आ रहा है आइकन, ये हमारा ओपन हुआ वर्क स्पेस एरिया। यहाँ पे हम अपनी खुद की क्यूरी राइट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो कितने डेटाबेसेस हैं। इन सभी डेटाबेसेस के अंदर कितनी चीज, आप इसको ना एक बार फर्स्ट टाइम जब आप इसको करेंगे ना, फाइल को रन कराएंगे, तो टेबल फेचिंग का ऑप्शन आ रहा है, व्यूज फेचिंग आ रहा है ना, इसको एक बार क्लोज करके रीओपन करें, डॉक्यूमेंटेशन पे आता है, अभी भी कहा जाएगा। देखो इस हर एक डेटाबेस में यदि आप क्लिक करो तो 4 पैनल दिखेंगे आपको, क्या क्या? टेबल, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन। जितने भी डेटाबेसेस हैं सभी में आपको जितनी भी डेटाबेसेस है कोई भी ओपन करो इस सभी के अंदर आते हैं। ईच डेटाबेसेस है ओनली 4 पैनल, क्या क्या होंगे हर एक डेटाबेस के अंदर? टेबल होगा, व्यू होगा, स्टोर प्रोसीजर होगा, फंक्शन। टेबल क्या होता है, व्हाट इज द टेबल? मैं आपको पेमेंट स्क्रिप्टिंग फाइल बना भेज दूंगा, आपके सिस्टम में भी बन जाएगा। फिर पहले डीक्यूएल पढ़ेंगे, तो डीक्यूएल में पहले क्यूरी परफॉर्म करना देखेंगे डेटाबेस के अंदर से। एक ना देखो, आपने बहुत रियल लाइफ से यदि कनेक्ट करें इस चीज को, तो आप समझो जैसे हम जब छोटे बच्चे होंगे तो हम सबसे पहले रोटी खाना सीखते हैं, मतलब बनी बनाई रोटियां खाना सीखते हैं, मतलब सेम जैसे हमारे पास बनी बनाई डेटाबेस है, इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग यूज करना सीखेंगे। जब यूज करोगे ना इसको, अपने एक्सेस करोगे, तो इसकी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या बनावट है, कैसे क्या रो कॉलम है। उसके बाद हम खुद का भी बनाना शुरू करेंगे। समझ गए? जैसे रियल लाइफ में रोटी खाना सीखा, फिर आपने रोटी गूंथना, आटा गूंथना, फिर आप खुद बनाना सीख जाते हो। तो सिमिलर थिंग है, हम पहले क्यूरी पर फॉर्म करेंगे, फिर हम अपने अकॉर्डिंग इसको मैनिपुलेशन करेंगे, फिर खुद का बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस स्कीमा पे जाके वो करेंगे क्या? वहां से जो फाइल जब एडमिन पे भी रहोगे ना, इसमें जाओगे, यहाँ पे खोल जाएगा स्कीमा पैनल आपके सामने दिख रहा है, और स्कीमा पैनल के अंदर आप नोटिस करो मल्टीपल डेटाबेसेस दिख रहे हैं। वन मोर थिंग्स देखो, एक्चुअली बताओ सब, सब कुछ लोग अलग अलग फ्लो में चलते हैं। कुछ लोग डीडीएल पहले डिस्कस करते हैं, फिर डीएमएल, फिर डीक्यूएल, ऐसे भी कुछ लोग चलते हैं, फिर डीसीएल, फिर टीसीएल। अभी प्रॉब्लम इसमें आता है, जो मैं आपको बताता हूँ। आपको जो चाहिए ना, आपको जो स्किल चाहिए ना डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ना ये वाला जो पार्ट है ना बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। इंटरव्यू में यदि आप में से कोई बैठे हो गए तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्यूरी में ज्यादा यही पूछते हैं। ये सब ना कोई पूछता नहीं है आपसे, ये वाला जो पार्ट है, ये सबसे ज्यादा ये दो से क्वेश्चन होता है कि जब यहाँ पे हम पहुंचते हैं तो इसका कुछ पार्ट यहाँ पे यूज होता है। यदि मैं स्टार्ट यहाँ से करूँ तो ये वाला पार्ट मैं कैसे समझा पाऊंगा वहां पे? तो क्या होता है कि ये बहुत जगह जितने लोग वीडियो या यूट्यूब वगैरह से पढ़ के आए होंगे, या किसी यहाँ पे भी पढ़े होंगे, तो जनरली लोग यहाँ से पढ़ाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये ट्रेडिशनल कोई रूट वो तो नहीं है ना, लकीर के फकीर जो फॉलो होता है वही करें हम। सही आप इसको फॉलो करके देख सकते हो, चीजें आपको समझ में आएगी। आप इसीलिए मैं आपको बताया, सबसे पहले मैं डीक्यूएल पढ़ाऊंगा, तो आप ये कंफ्यूज मत होना कि डेटाबेस क्रिएशन तो देखा ही नहीं हो। हम देखेंगे डेटाबेस क्रिएशन, सब कुछ करेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं रहेगी जो आपको स्किप होगी। अब एंड ऑफ द क्लास आप हर एक चीज को आप चेक कर लेना, आपको सारी चीजें कंप्लीट मिलेगी। बट स्टार्टिंग में जैसे फ्लो में चल रहा हूँ, फ्लो में चलें आप भी। बातें आपस में ना करें, एक दूसरे से टोंट ना करें। आप मेरे फ्लो में मेरे साथ चलें, आपको एक रियलाइज होगा कि आपको एक गुड पाथ पे फॉलो करना है ना। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम आगे जाके मिसगाइड कर दें, है ना। जितने जगहों से पढ़ रखे होगे, जितने जगहों से आपने करा होगा अपने लेवल पे, जरूर आपसे कुछ अलग जरूर मिलेगा।
ये होता है ना, सबका कुछ ना कुछ तो अपना स्पेशल होता है ना, तो आपको जरूर अच्छा फील होगा। आप पढ़ के देखो, क्योंकि मैंने मल्टीपल बैचेज में ये चीजें करा रखा है, और जितने बैचेज में कराया उनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। उनका ये मानना है, या इनके इंटरव्यू में जब वो बैठे हैं तो उनका ये मानना है कि उनके लिए बेटर रहा है हमेशा। समझ गए हम सभी लोग? तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। हर बात पे हंसे नहीं, बहुत ज्यादा मैं इरिटेट हो जाता हूँ। हर आपस में बात करके हंसे नहीं प्लीज, है ना? फिर हम ऐसे डिस्टर्बेंस ना करें क्लास को। नाउ दीज आर द डेटाबेसेस। देखो आप, इस SQL HR, SQL इन्वेंटरी, ये सारे हमारे डेटाबेस हैं। हर एक डेटाबेस के अंदर चार पैनल दिखेंगे आपको, टेबल, व्यूज, और स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन। चाहे किसी भी डेटाबेस को आप ओपन करो, चाहे किसी भी डेटाबेस को ओपन करो, तो ये चार ही चीज मिलेंगे आपको। तो अब एक ही करके मैं डिस्कस करता हूँ। व्हाट इज द टेबल? ये टेबल क्या है, देखिए आप। व्हाट इज द टेबल? टेबल इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। टेबल के अंदर क्या होती है? दो ही चीजें होती है, रो एंड कॉलम। तो ये रिकॉर्ड्स, और कॉलम्स को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स। ये दो जनरली नेम है। तो देखिए, और टेबल्स को टेक्निकली या सिक्वल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन भी कहा जाता है। कहीं कहीं आप सुनेंगे ORM। पाइथन जो है ORM फॉलो करता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। मतलब मेरा कहने का सेंस है कि आप टेबल को रिलेशन भी कह सकते हैं। तो हाउ मेनी रिलेशन वी हैव, देखो आप, ये सारे हमारे टेबल्स हैं। और ईच टेबल से यदि आप देखो बेटा, कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल, एक टेबल को यदि आप ओपन करो तो इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है? कॉलम, इंडेक्सेस, फॉरेन की और ट्रिगर्स। समझ में आ रहा है? तो लेट से पहले मैं टेबल को डिस्कस करूं। इस टेबल की डेटा यदि व्यू कर रही है तो देखो यहाँ पे राइट साइड में एक आइकन दिख रहा है, जस्ट क्लिक ऑन हियर। ये पूरी की पूरी आपको डेटा शो हो रही है, दिख रहा है ना? ये डेटा किसकी है? कस्टमर टेबल। यदि हमें ऑर्डर टेबल की डेटा दिख रही है तो ऑर्डर पे हमने गए, और यहाँ पे देखो राइट साइड में दिख रहे हैं आपको, इस पे क्लिक करो, देखो ऑर्डर टेबल की पूरी डेटा। यदि लेट से हमें प्रोडक्ट टेबल की देखना है तो इस पे क्लिक करें, यहाँ पे देखो प्रोडक्ट टेबल की पूरी डेटा। तो किसी भी टेबल की डेटा, जैसे लेट से मैं इसमें से किसी टेबल पे देखना होता है, लेट से किसी का भी क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करो, देखो क्लाइंट क्या आ रही है। ये और नो समझ में आ रहा है? और यहाँ से आप यदि क्लोज करना चाहते हो, देखो ये आ रहा है आइकन, सबको यहाँ से आप बंद कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देखो मैंने यहाँ सबको क्लोज कर दिया, यहाँ पे अगेन अपना ओपन कर लिया यहाँ से। क्या हम सभी को यहाँ तक क्लियर हो रहा है चीजें? अब नोटिस करो एक चीज, यदि हम किसी भी टेबल पे क्लिक कर रहे हैं बेटा, तो उस टेबल के अंदर की सारी डेटा हमारे सामने व्यू हो जा रही है। देख रहे हो ना, सारी की सारी डेटा। अब कभी कभी क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि मुझे कस्टमाइज रिजल्ट जनरेट करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि कस्टमर आईडी हो, कस्टमर का एड्रेस हो, और कस्टमर का फोन नंबर हो, और कस्टमर का स्टेट हो, बस इतनी इंफॉर्मेशन की चाहिए। लेट्स से वी वांट टू एक्सेस ओनली हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम, ओनली 4 कॉलम। तो ये चीज तो हम ऐसे कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि किसी भी टेबल पे जब आप इस आइकन पे क्लिक करते हो, देखो सेकंड आइकन पे, तो क्या ओपन होता है? पूरी की पूरी डेटा। बट हमें तो पूरी डेटा चाहिए ही नहीं, हमें तो कस्टमाइज रिजल्ट चाहिए। तो यदि आपको कस्टमाइज रिजल्ट चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? खुद की क्यूरी राइट करेंगे, जहाँ पे SQL की यूज होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? तो हम अपनी खुद की क्यूरी राइट करके अपने डेटा को कस्टमाइज में ला सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक, बस वो मैं डिस्कस करता हूँ, देखना आप। तो मैं स्टार्ट कर रहे हैं DQL, डेटा क्यूरी लैंग्वेज। ये स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का पहला है। तो देखो एक चीज समझना ध्यान से, जैसे ये जो डेटाबेसेस हैं, कस्टमर्स, ऑर्डर्स, ये किस डेटाबेस के अंदर बताया? SQL स्टोर के अंदर। अब एक चीज नोटिस करना, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक क्लाइंट है, क्लाइंट किस डेटाबेस के अंदर बताओ? SQL इनवॉइसिंग। समझ में आ रहा होगा आपको? आइडेंटिफाई करने आ गया होगा? जैसे लेट से आप यहाँ पे देखें, जैसे हमने आपसे कहा कि प्रोडक्ट टेबल, तो प्रोडक्ट टेबल का डेटाबेस कौन है? SQL इन्वेंटरी। समझ पा रहे हैं आप? तो किसी भी टेबल को यदि आपको एक्सेस करना है तो सबसे पहले उसके डेटाबेस को आपको सिलेक्ट करना होगा। तो यदि मुझे कस्टमर टेबल की डेटा एक्सेस करनी है तो कस्टमर टेबल किस डेटाबेस के अंदर, उसे मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं। ये एक तो है तरीका ये कि इस पर डबल क्लिक कर दो, वो सिलेक्ट होगा। दूसरा तरीका है बेटा, यूज कमांड यूज करते हैं किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए। यूज, यूज हमारा कीवर्ड हुआ, और यूज के बाद डेटाबेस का नेम, जिस डेटाबेस को आपको सिलेक्ट करना है। तो लेट से मैं SQL स्टोर को सिलेक्ट करना है, डेटाबेस का नाम क्या है हमारा? SQL स्टोर। अच्छा, डेटाबेस का नेम क्या अभी मेरे साथ SQL लिखा हुआ नहीं रहेगा, डेटाबेस का नेम कुछ भी हो सकता है। बट हमारे केसेस में भी डेटाबेस का नाम क्या है? SQL स्टोर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यूज देन डेटाबेस का नेम। हमने यहाँ पे नाम लिखा SQL स्टोर। देख रहे हैं आप? अब इसको रन कराओ। रन कैसे कराते हैं बेटा? देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको एग्जीक्यूट करने का। दूसरा कंट्रोल इंटर प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल इंटर एक साथ। तो कंट्रोल इंटर प्रेस किया, आप कुछ चेंजिंग दिख रहा है आपको अपने डेटाबेसेस में? क्या आपके डेटाबेस में कोई चेंज दिख रहा है? हाईलाइटेड हो गया, देखो बेटा, जिसको मैंने यहाँ पे दिखा, ब्लैक साइड है ना? तो यदि मैं यहाँ पे SQL HR लिखूं, तब देखना ये हाईलाइटेड होगा, देखना आप नोटिस करना, देखो हो रहा है ना? तो जो ये कैसे समझेंगे कि कौन सा डेटाबेस सिलेक्टेड है? तो जो डेटाबेस हाईलाइटेड शो कर रहा है, मतलब वो डेटाबेस हमारा क्या है? सिलेक्टेड है।
क्या हम इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं सब लोग? जैसे आपको सिक्वल इनवॉइसिंग, मतलब मेरा कहने का सेंस है कि जिस टेबल पे काम करना है उस टेबल की डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पे सिक्वल स्टोर को सेलेक्ट किया, देखो सेलेक्ट हो चुका है। अब इस डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल है वो आपके लिए एक्सेसिबल है। अब आप इसमें से कस्टमर ऑर्डर जितने भी टेबल दिख रहे हैं ना, इन सभी टेबल को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो करके देखते हैं। देखो इसके बाद यदि फिर से नई क्यूरी लिखनी है तो इसके लास्ट में आपको सेमी कॉमा देना होगा, क्योंकि अब आपको न्यू क्यूरी लिखनी है। यदि क्यूरी न्यू नहीं लिखनी है तो उसके आगे सेमी कॉलम देने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, अब एक टेबल की देखो, आप सबसे पहले यूज करेंगे हम सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू किसी भी मतलब अपने टेबल के अंदर कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। तो लेट्स से हमने लिखा सेलेक्ट स्टार मींस व्हाट, सेलेक्ट ऑल द कॉलम। वी आर सेइंग दैट सेलेक्टिंग ऑल द कॉलम। अब थिंग इज दैट कि हमने कहा सेलेक्ट ऑल द कॉलम, देन व्हिच टेबल हमें बताना होगा। सो वी नीड टू राइट इट आफ्टर फ्रॉम कीवर्ड, और यहाँ पे लिखेंगे आप टेबल का नेम, जिस टेबल से लाना है। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार, मतलब सेलेक्ट ऑल द स्टार क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल। और फ्रॉम के बाद जिस टेबल से डेटा लानी है, मैंने कहा कि कस्टमर्स टेबल से लानी है, तो आप यहाँ पे टेबल का नेम लिखेंगे कस्टमर्स। तभी हमारा डेटा किस टेबल से आएगा, कस्टमर टेबल से। देखिए ये कस्टमर टेबल के डेटा देखिए व्यू हो रहा है, ये सुन लो। आप बेटा इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे, अलग अलग लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है। एक देखो अभी एक लाइन में है। अब मुझे लेट से कस्टमर की जगह मुझे ऑर्डर टेबल चाहिए था, तो ऑर्डर टेबल यहाँ लिख दो टेबल का नेम। तभी किसकी डेटा आ रही है, ऑर्डर टेबल। समझ में आ रहा है आप सभी को ना? अब लेट से मैं प्रोडक्ट टेबल की डेटा लाना होता है, क्या लिखते हैं, सिर्फ ऑर्डर की जगह पे प्रोडक्ट। तो किसी भी टेबल की डेटा आप इजीली ऐसे ला सकते हैं। देखिए आ रहा है। तो अब मुझे कस्टमर टेबल में वापस चलता हूँ, लेट्स यहाँ पे जाओ। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब मैंने कहा कि स्टार का मतलब ऑल कॉलम आ ही रहा है। इस पर डबल क्लिक करके भी तो वही सारा काम हो रहा था, सारे कॉलम आ रहे थे। फिर ये क्यों लिखने की क्या क्यों नीड बढ़ गई? तो आप यहाँ पे स्टार को हटा के आप कॉलम का नेम मेंशन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार को हटाया, स्टार हटाने के बाद इस टेबल में से जो जो कॉलम चाहिए सिर्फ उस कॉलम का नेम लिख दो। जैसे अभी कस्टमर टेबल के अंदर ये सारे कॉलम है, अब जो जो कॉलम चाहिए वो कॉलम का नेम लिख दो। तो हमें चाहिए था लेफ्ट से कस्टमर आईडी, तो हमने यहाँ कॉलम का नेम लिखा कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी। फिर आप यहाँ पे लिखे लेट से हमने लिखा फर्स्ट नेम। ये कॉलम का नेम है, ये सब क्या है हमारे कॉलम के नेम। और एक कॉलम के बाद दूसरा कॉलम लिखने के लिए हमेशा किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से। ठीक है। अब लेट्स हमने इसके बाद लिखा बेटा बर्थ डेट, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे बर्थ डेट। आप एक चीज और, ऐसा नहीं कि इस जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में फॉलो करना है, आप किसी भी सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं। वन मोर थिंग्स कि आप इसको अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। जैसे लिखो हमने यहाँ पे कस्टमर आईडी, फोन नंबर, फर्स्ट नेम, अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं। देखिए आप, मैंने कितने कॉलम की सिलेक्ट किया है, ओनली बताएं आप 3 कॉलम। कौन कौन से, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम और बर्थ डेट। और लास्ट नेम नहीं, कॉमा, लास्ट ही कॉलम नेम के बाद कॉमा नहीं देना है। मतलब फ्रॉम से पहले जो कॉलम होगा, बर्थ डेट का है कॉलम ही तो है, तो लास्ट कॉलम के बाद आपको कॉमा देने की नीड नहीं। अच्छा कॉमा यदि दे देंगे तो ये बाइक आपको शो करेगा ये ना। तो इस यहाँ पे एरर शो कर रहा है, मतलब इसके आगे की लाइन में error। समझ में आ रहा है आप सभी को? एक एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने लास्ट वाले कॉलम में क्या लगा रखा है, कॉमा। कैसे लगाते हैं, कंट्रोल एंटर में क्लिक करिए। आप नोटिस करिए सिर्फ वही कॉलम एक्सेस हो रहा है। देखिए आप यहाँ पे वही कॉलम एक्सेस हो रहा है जिसको हमने नाम लिखा है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम और बर्थडे। देख रहे हैं, समझ पा रहे हो आप सभी लोग? तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम में से डेटा को अपने अकॉर्डिंग यूज कर, किसी भी टेबल से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। क्या इतनी पॉइंट हम समझ पाए सब लोग? यस। इस क्वेरी के बाद लेट से मुझे फिर से कोई क्वेरी लिखनी होगी, इसके बाद फिर से मैं सेमीकोलन देना होगा। सेमी कोमा का मतलब होता है इस पर्टिकुलर क्यूरी यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, मतलब इसके आगे फर्दर कोई क्यूरी अपने आने। तो इसको यदि लेट से कमेंट करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्यूरी रन ना करे, तो इसको कमेंट कैसे कर सकते हैं, ये तरीके रखते हैं कि आप देखो यहाँ से सेलेक्ट करें, यहाँ से यहाँ तक को, और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश सेलेक्ट करो। देखो पूरे के पूरे कमेंट हो गया। इसके आगे डबल हाइफन लग गया ना, मतलब ये कमेंट होगा। अनकमेंट करने के लिए अगेन इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल साइड फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ तक हम क्या क्लियर हो पा रहे हैं सब लोग? Yes, sir. किसी को हाइफन कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, फिर से कमेंट करने के लिए कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश अगेन। देखो अच्छा ये और है, यदि आप ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, आपको
इनकन्वीनियंट हो रहा है या लाइन बाय लाइन करना है, तो किसी भी लाइन के आगे आप हाइफन हाइफन स्पेस दे दो, कमेंट आउट हो। या हैज भी लगा दो, हैज से भी हो, हैज से भी आपका कमेंट आउट हो जाता है ना। ये इससे आप ठीक है। अगर वजह आप पूरे को एक साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश भी कर सकते हैं। सर ये ये सेलेक्ट आउट करके नहीं लगेगा। हैज बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सिंपल बाय डिफॉल्ट कमेंट कैसे लेआउट करता है हाइफन से, मतलब हैज भी वही सेम है, तो आप लिख सकते हो ऐसे। समझ में आया आप सभी को? तो यहाँ तक आज की क्लास में रखता हूँ मैं, ये वाली फाइल शेयर करता हूँ, ये मेरा नंबर है, नोट डाउन कर लें। क्लास में यहीं पे ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू अगेन।